હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગઈકાલના વિડીયોમાં આપણે જોતા હતા મેગ્નેટિક સર્કિટ વિશે, બરાબર, ચુંબકીય પરિપથ વિશે. તો આપણે આ એક લીધું હતું ચુંબકીય પરિપથ. એની જે મીન લેન્થ કેટલી હતી? L મીટર, અને જે એનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા જે હતો એ હતો A મીટર સ્ક્વેર, બરાબર છે. હવે આ જે કંડક્ટર દેખાય છે, આ જે આના ઉપર વીંટાળવામાં આવ્યો છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? કોઇલ. કોઇલમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે કેટલો? I, અને કરંટનો એકમ કેટલો? એમ્પિયરનો A. આ જે કેટલી વાર આપણે વીંટાળીએ છીએ એને કહેવામાં આવે છે ટર્ન્સ. ઓકે, તો એના નંબર ઓફ ટર્ન્સ કેટલા કીધા છે આપણે? N ટર્ન્સ. સો એના બેઝ પર આપણે થોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યાખ્યાઓ જોઈ હતી આ મેગ્નેટિક પરિપથને સાથે જે રિલેટેડ છે એ. તો એના માટે ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જોઈ હતી એ છે મેગ્નેટિક મોટિવ ફોર્સ. એને ટૂંકમાં લખવામાં આવે છે MMF, બરાબર છે. સો MMF એ શું છે કે આ જે કોઇલમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે તે અને કેટલા ટર્ન છે એ બેનો ગુણાકાર. આનો યુનિટ શું થશે? I મતલબ કરંટનો એમ્પિયર, અને નંબર ઓફ ટર્ન્સનો આપણે શું લખવાનું? T, એટલે એમ્પિયર ટર્ન્સ, બરાબર છે. આ એક આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન બીજી જોઈ હતી, એ હતી मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. તો હું થોડું સ્પીડમાં બોલીશ, રિવિઝન છે એટલા માટે. એને આપણે શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે? H, અને એ શું છે? मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर लेंथ, पर मीटर लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ. तो हम उसको कैसे डिनोटेट करते हैं? MMF बाय L, बराबर. तो उसको MMF के रख दो तो क्या लिखेंगे? IN बाई L, और उसका यूनिट क्या आएगा? MMF का क्या है? एम्पियर टर्न, और लेंथ है तो वो मीटर में आएगा, तो उसका यूनिट आएगा एम्पियर टर्न्स पर मीटर. तो ये इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन आपको करनी है अच्छी तरह से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, राइट. दूसरी डेफिनेशन जो देखी थी वो थी ये वाली, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? तो जो मैग्नेट के आसपास जो भी ये आती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं, बराबर છે, એને શું કહેવાય છે? મેગ્નેટિક ફ્લક્સ. ટોટલ જેટલી હોય તેટલાને એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે? ફાઈ, અને એનો એકમ કેટલો છે? વેબર. આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, બરાબર. એના બેઝ પર આપણે જોયું હતું નેક્સ્ટ ફ્લક્સ ડેન્સિટી. ફ્લક્સ ડેન્સિટીને આપણે શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે? બીથી, અને એ શું છે કે ફ્લક્સ પર યુનિટ એરિયા ઓફ અ ક્રોસ સેક્શનલ. તો ફ્લક્સ મતલબ ફાઈ, તો યુનિટ એરિયા મતલબ એરિયાનો A. આવી રીતના યાદ રાખવાનું. સો આનો એકમ શું થશે? બીનો. આ ફ્લક્સ ફાઈ છે, ફાઈનો એકમ વેબર, એટલે WB લખું મેં એનો શોર્ટમાં, વેબર પર મીટર સ્ક્વેર. એરિયાનો કેટલો થશે એકમ? મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, અને બીજો એકમ આપણે જોયો હતો ટેસ્લા. એને કેપિટલ T વડે પણ દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર. તો આ 4 ડેફિનેશન તમારે વ્યવસ્થિત કરવાની છે, બરાબર છે. આ જો એ બધું લખ્યું છે, મેં બતાવ્યું પણ છે. આ લિંકેજ અને મેગ્નેટિક ફોર્સ, આ બે એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ, મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી અને MMF, આ 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારે કરવાની છે, આવશે જ એક્ઝામમાં, બરાબર. ચાલો, તો હવે આપણે આગળની વ્યાખ્યાઓ જે છે ડેફિનેશન તે આપણે જોઈશું. મેગ્નેટિક પાથને રિલેટેડ જ છે, બરાબર, ને ખૂબ જ ઇઝી છે. सो फर्स्ट वन है, उसमें आज देखेंगे रिलक्टेंस. ओके, सो रिलक्टेंस किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है उसमें ओम्स लॉ जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. उसके मुताबिक क्या होता है? V इक्वल टू IR. सिंपल, ये आपको याद रखना है. सो वहाँ पे जो रजिस्टेंस होता है ना R इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हमारे लिए मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? रिलक्टेंस. सो यहाँ से हम R इक्वल टू क्या लिखेंगे? V बाय I लिख सकते हैं. ये I को हम डिनोमीटर में लेके आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो R इक्वल टू एक्चुअली क्या है? V बाय I. मैं फिर से लिखता हूँ, R इक्वल टू क्या है? V बाय I, ये आता है. एक्चुअली V क्या है? जो हम वोल्टेज देते हैं वो है, तो उसको हम EMF भी बोलते हैं.
तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, EMF बाय आई। ओके, अच्छी तरह से समझना इनको। अब ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए है, बराबर है। इलेक्ट्रिक परिपथ માટે છે અને મેગ્નેટિક માટે અહીંયા આર જે ઇલેક્ટ્રિકમાં આવે એની જગ્યાએ મેગ્નેટિક માટે શું આવશે, રિલક્ટન્સ, અને એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે, એસ વડે દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર છે। સો આપણે એસને ડિફાઇન કરવું હોય તો કેવી રીતના કરીશું, એસ ઇક્વલ ટુ કેવી રીતના લખીશું, અહીંયા આરમાં શું છે, EMF, તો આપણે મેગ્નેટિકમાં શું આપણે આવે છે, MMF આવે છે, મેગ્નેટોમોટિવ ફોર્સ, ડિવાઈડ બાય આ આઈ કરંટ હોય છે ઇલેક્ટ્રિકની અંદર, તો મેગ્નેટિકની અંદર કરંટની જગ્યા શું હોય છે, ફ્લક્સ, ફ્લક્સને આપણે શાનાથી દર્શાવીએ છીએ, ફાઈથી। તો આ રિલક્ટન્સ થઈ ગયું એક ડેફિનેશન, બરાબર છે। કે રિલક્ટન્સ એસ ઇક્વલ ટુ શું લખાય આપણાથી, MMF બાય ફાઈ, જો અહીંયા છે રિલક્ટન્સ ઇક્વલ ટુ MMF બાય ફાઈ। પછી એના સિમ્બોલમાં બતાવી દીધું, રિલક્ટન્સને આપણે શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે, એસથી। MMF इक्वल टू ऑलरेडी हमने देखा है क्या आता है, IN, और फाई, फ्लक्स मतलब फाई, तो ये आ गया। ओके, समझ में आया, उसको मैं निकाल देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखी है। रजिस्टन्स जो है मतलब एक अवरोध, इलेक्ट्रिक सर्किट ની અંદર વાત કરું, આર मतलब શું છે, રજિસ્ટન્સ, અવરોધ, मतलब કોઈપણ એક વાહકમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે એને એ અવરોધ કરવાનો, એને રોકવાનું કામ કરે છે, બરાબર છે, એનો અપોઝ કરે છે કરંટને। सो जो आर है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसका काम क्या है, जो कंडक्टर में से जो करंट पास होता है उसको अपोज करना, गेटिंग। सो द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस या द रजिस्टर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू अपोज द करंट passing through the conductor। okay, so similarly in magnetic circuit that function is fulfilled by reluctance, getting। so यहाँ पे जो है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में आर जो काम करता है वो काम मैग्नेटिक सर्किट में ये एस करता है। नाउ सी उसकी डेफिनेशन, वो वहाँ पे करंट को अपोज करता है, तो यहाँ पे करंट की जगह पे क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। ओके, तो देखो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, के आ एक જે ચુંબકીય પદાર્થ છે એનું એક ગુણધર્મ છે કે એની અંદર જે ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો વિરોધ કરવાનો, એને શું કહેવાય છે, રિલક્ટન્સ, બરાબર છે। સો અહીંયા આપણે આ તો ડેફિનેશન જોઈ જ છે। હવે એનો એકમ લખવો છે, તો એકમ કે આ ડેફિનેશન તમારે લખવાની, હા, ત્યાર પછી એને આ રીતે બતાવવાનું સિમ્બોલિકલી। દેન એનો એકમ કેવી રીતના લખીશું, IN मतलब MMF। सो MMF का एकम जो है यूनिट वो हमने लिखा था एम्पियर टन, डिवाइड बाय क्या है, फ्लक्स, तो फ्लक्स का यूनिट क्या आता है, वेबर। सो WB, तो ये किसका आ गया, रिलक्टेंस का जो है यूनिट आ गया। सो जो यूनिट लिखना है, बराबर, एकम जो लखवानो छे ये आ रीते याद राखो, एने गोखवानी जरूर नहीं, बराबर है। सो ये रिलक्टेंस के बारे में बात हुई। अब रिलक्टेंस का एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो याद रखो, एस इक्वल टू क्या है, L बाई म्यू ए, ये याद रखो। यहाँ पे म्यू क्या है, उसको म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और म्यू जीरो ने म्यू आर शू है यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखेंगे। ओके, सो एक याद रखना, एस इक्वल टू L बाई म्यू ए, ये कैसे आता है, किस तरह से उसको प्रूव करना है, वो डिग्री के अंदर आता है। आपके डिप्लो के अंदर थोड़ा ओवरव्यू ही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ले लेनी है, राइट। सो यहाँ पे गुजराती में भी लिखा है, देखो, रिलक्टेंस, देखो ये चुंबकीय पदार्थोना પોતાનામાં ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થવાનો વિરોધ કરતા ગુણધર્મને રિલક્ટન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર। એટલે કે જે ચુંબકીય પદાર્થ હોય પોતાનામાં જ એક જે ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થતો હોય તો તેનો જ વિરોધ કરે, એને રિલક્ટન્સ, બરાબર। બીજી ડેફિનેશન લખવી હોય તો MMF અને ઉત્પન્ન થતા મેગ્નેટિક ફ્લક્સના ગુણોત્તરને રિલક્ટન્સ, આપણે જે રીતે જોયું ને આ રીતે એ જ છે, બરાબર છે।
तो आज ये बात थी अपनी रिलक्टेंसनी। सो ये आपको करना है, ये भी डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आईएमपी वो है परमिएबिलिटी। सो ज़्यादातर है ना यहाँ पे बुक में लिखा है कि ये परमिएबिलिटी लिखा है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो सबसे ज़्यादा जो आती है वो डायरेक्ट परमिएबिलिटी ही आती है। ओके, और उसको हम साथ में लिख देंगे, कैसे वो आपको मैं बताता हूँ। सो परमिएबिलिटी क्या है, तो एक अच्छी डेफिनेशन लिख के देखो। द ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा थोड़ा बहुत। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स टू बी प्रोड्यूस थ्रू इट, इट्स कॉल्ड परमिएबिलिटी। ओके, कि जो प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की, वो क्या करता है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना, उसको अलाउ करता है, वो प्रोड्यूस होने देता है, तो उसको बोलता है परमिएबिलिटी। और वो डिपेंड किस पे करता है, कौन से टाइप का जो मटेरियल होता है ना उस पर डिपेंड करता है, सभी में एक जैसी नहीं होती। गेटिंग? सो यहाँ पे गुजराती में लिखा है देखो, चुंबकीय पदार्थोना પોતાનામાં મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થવા દેવાના ગુણધર્મને परमिएबिलिटी तरीके ओळखवामां आवे छे। गेटिंग? और उसको डिनोटेट कैसे करते हैं, म्यू से। बस ऐसे ही लिखना है, जो बुक में लिखा है उससे ये अच्छा है। ओके, परमिएबिलिटी ने शानाथी दर्शाववामां आवे छे, म्यू वडे, अने एनो एकम केटलो छे, हेनरी पर मीटर। सो आपणे लखवुं होय तो शुं लखाय, हेनरीनो कैपिटल एच पर मीटर, आ रीते, बराबर है। एंड एक साथ में ये रिलेशन लिख देना कि म्यू इक्वल टू क्या आता है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। अब ये हमने देखा, ये म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। लख्યું છે जो म्यू शू है, चुंबकीय पदार्थनी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, बराबर है। आ म्यू जीरो शू है, ये पर परमिएबिलिटी ज छे पण सानी छे, तो म्यू जीरो जे छे ए शू छे, हवा अथवा तो शून्य अवकाशनी परमिएबिलिटी, मीन्स परमिएबिलिटी ऑफ एयर। और उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स, कितनी, 4 पाई, किसकी वैल्यू, म्यू जीरो की, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यूनिट क्या है, हेनरी पर मीटर। और म्यू आर जो है वो क्या है, चुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष परमिएबिलिटी, मतलब आर पे से याद रखना है, क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और आप एयर के लिए आप म्यू आर फाइंड करो फॉर द एयर, मतलब हवा माटे म्यू आर नी वैल्यू जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑलवेज केवी हशे, तमारी 1 हशे। पछी ये बधा पदार्थों पर डिपेंड करे कि कई टाइपना चुंबकीय पदार्थ है, तो एना हिसाबे अलग अलग हशे, बराबर है। तो आ म्यू जीरो जे छे ए केवी रहेशे, तमारी सेम रहेशे हवा माटे, बराबर। पण म्यू आर जे छे ए शुं छे, चुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष परमिएबिलिटी। तो हवा माटे म्यू आर केटलुं थशे, 1 थशे, बीजा कोई पदार्थ माटे अलग हशे, बराबर है, बदलाती रहेशे। तो परमिएबिलिटी सौथी वधारे पूछाय छे। तो आ रीतना डेफिनेशन लखवानी कि भाई चुंबकीय पदार्थोना पोतानामां मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न थवा देवाना गुणधर्मने परमिएबिलिटी कहे छे। मतलब केटलुं फ्लक्स प्रोड्यूस करी शके छे, केटली केपेसिटी है मटीरियलनी, बराबर है ने। एने शानाथी दर्शाववामां आवे छे, म्यू, अने एनो एकम शुं छे, हेनरी पर मीटर। म्यू इक्वल टू शुं छे, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। आ बधी वस्तु शुं छे ए आपणे लखी देवानी, एटले 1 मार्क आपने मळी जशे, बराबर। तो चलो बुकना पेज पर जाइए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमने डेफिनेशन देखी। सो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज टेकन एज रेफरेंस और बेस। सो जो एयर या वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी रहती है उसको एक रेफरेंस के तरह लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू जीरो एंड इट्स वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो जो हमने वहाँ पर देखा गुजराती में बस वही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे लिखो, उसे ऐसे याद रखो, उससे बेटर है वो कि ये डेफिनेशन लिखो, बाद में लिख दो कि इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इट्स कॉल, क्या इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, राइट। एंड द यूनिट इज हेनरी पर मीटर। देन नेक्स्ट याद रखो, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो एंड म्यू आर। वहाँ पे लिख दो कि म्यू जीरो इज़ द
परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और उसकी वैल्यू क्या है ये। देन म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, राइट, वो लिख दो तो वो इजी रहेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि परमेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिनोटेड बाय म्यू। कोई भी मटेरियल की परमेबिलिटी म्यू से हम डिनोटेट करते हैं और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। बस वही है। तो जो गुजराती में देखा वो बेटर वे है, एकदम इजी। पहले ये लिख दो, बाद में लिखो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, उसका एकम है हेनरी पर मीटर। देन म्यू इक्वल टू रिलेशन है म्यू जीरो म्यू आर। यहाँ पे लिखो म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। म्यू जीरो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एंड म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब कोई पण चुंबकीय पदार्थની સાપેક્ષ। तो म्यू आर एयर માટે કેટલી હોય, 1 હોય, બીજા પદાર્થ માટે અલગ હશે। બસ આટલું યાદ રાખો આ રીતના, બરાબર। चलो अब नेक्स्ट જે છે એ શું છે, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो बस यहाँ से हम करेंगे। सो हमने देखा म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। अब हमें म्यू आर चाहिए ना, रिलेटिव सापेक्ष परमेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, म्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये म्यू तो है, डिवाइड बाय ये म्यू जीरो लेफ्ट साइड ले ले तो नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया, देखो ये लिखा ही है, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू जीरो। सो वहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, बस वही है। ओके, कुछ नहीं है। व्हेन द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज कंपेयर्ड विथ दैट ऑफ द एयर और वैक्यूम इट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर। मतलब हम कोई भी एक चुंबकीय मटेरियल रहता है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, उसकी जो परमेबिलिटी है उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, परमेबिलिटी के साथ ही, लेकिन किसकी, एयर की और वैक्यूम की, बराबर। मतलब जे कोईपण एक चुंबकीय पदार्थ है एनी जे परमेबिलिटी है एने आपणे हवानी अथवा तो शून्य अवकाशनी परमेबिलिटी साथे आपणे सरखावीए तो तेने शुं कहेवाय, सापेक्ष परमेबिलिटी या रिलेटिव। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने परमेबिलिटी में बताया आपको कि किस तरह से लिखना है, बस ये याद रखो। सो आज हमने देखा यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, रिलेक्टेंस एंड परमेबिलिटी, उसमें सब कुछ याद रखना है, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अब ये रिलेक्टेंस का आप उल्टा कर दोगे ना तो वो क्या बन जाएगा, परमियंस। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन ये वाली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई बार आ सकती है लेकिन ईजी है। सो परमियंस क्या है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रिलेक्टेंस। मतलब परमियंस इक्वल टू શું, 1 ડિવાઇડ બાય રિલેક્ટન્સ। એટલે જે આપણે રિલેક્ટન્સ જોયું એસ એનાથી ઊંધું, તો પરમિયન્સને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે, ડેલ્ટાથી, બરાબર। તો ડેલ્ટા શું થઈ જશે, એસનો ઊંધો થઈ જશે ને, તો શું થઈ જશે, 1/s લખીશું। આ શું થઈ ગયું, તમારું પરમિયન્સ, બરાબર છે। ચલો સર, अब देखो यहाँ पे लिखा है द परमियंस इंडिकेट्स हाउ इजीली द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी एस्टाब्लिश इन द मटीरियल। હવે રિલેક્ટન્સ શું કરતો હતો એસ આપણો, કે જે બી ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થતો હતો પદાર્થની અંદર તેને વિરોધ કરતો હતો, બરાબર છે। તો એનું ઊંધું થઈ ગયું કે પરમિયન્સ શું છે, એ શું બતાવે છે કે કોઈપણ પદાર્થની અંદર, ચુંબકીય પદાર્થની અંદર જે ફ્લક્સ છે એ કેટલા સરળતાથી એમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, એનું ઊંધું થઈ ગયું। પેલું શું કરતો હતો, રિલેક્ટન્સ એસ શું કરતો હતો, વિરોધ, અપોઝ। જ્યારે પરમિયન્સ છે એ શું બતાવે છે કે કેટલી સરળતાથી ચુંબકીય પદાર્થની અંદર જે ફ્લક્સ છે એ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, એ એક એનો ગુણધર્મ બતાવે છે, સિમ્પલ, બરાબર છે। सो यहाँ पर देखा है हमने कि रिलेक्टेंस क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होता है उसको अपोज करता था। अब ये जो परमियंस है उसका उल्टा है, डेल्टा, वो क्या करता है कि कितने इजीली मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स एस्टेब्लिश हो सकता है वो बताता है, सिंपल, उसका पूरा अपोज है, राइट, एस का। सो हमने देखा कि डेल्टा परमियंस को कैसे डिनोटेट करते हैं,
डेल्टा से, और डेल्टा क्या है, रिलक्टेंस का रिवर्स है, का इन्वर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाई रिलक्टेंस लिखा है ना, तो रिलक्टेंस की जगह पे हम देखेंगे एस, उसको सिंबल में। अब देखो ये 1/s का हमें पता है फॉर्मूला क्या आता है, हमने दूसरा देखा L डिवाइड बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, और L नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया उसका एक इक्वेशन। अब उसका जो है एकम क्या है, यूनिट क्या है परमियंस का, तो हमने देखा था यहाँ पे रिलक्टेंस का यूनिट क्या लिखा था, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, तो उसका उल्टा लिख देंगे। गेटिंग? तो देखो यहाँ पे लिखा है वेबर पर, एस का क्या है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, तो परमियंस का एकम क्या आएगा, यूनिट, उसका रिवर्स कर दो, वेबर पर एम्पियर टर्न। सो एक दो डेफिनेशन याद रखो, उसके बेस पे सभी आपको याद रह जाएगी। आप समझ के लिखो कि परमियंस है वो क्या है, रिलक्टेंस हमने देखा उसका उल्टा है, इनवर्स है, बस इसी हिसाब से लिखो, राइट। चलो, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हुई, इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इसके आगे जो हमने देखी रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी, वो मोस्ट टाइम भी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बेस पे ही है। अभी ये रिलक्टेंस हमने देखा ना, उसको डिनोटेट करते हैं एस से। अब एक नई डेफिनेशन आई रिलेक्टिविटी, और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिलक्टेंस। तो ये सेम ही है, ऐसी ही है। ये क्या है, रिलक्टेंस ही है ना, देखो यहाँ पे लिखा ही है, ये रिलक्टेंस ही है, लेकिन कौन सा है, स्पेसिफिक। तो हमें याद रखना है स्पेसिफिक रिलक्टेंस का मतलब क्या है। जो हम रिलक्टेंस जो हम करते हैं ना कोई भी मैग्नेटिक सर्किट के लिए, तो मैग्नेटिक सर्किट की जो मीन लेंथ होती है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो लेंथ कितनी होती है 1 मीटर, और एरिया कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक सर्किट का जो लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसके लिए हम रिलक्टेंस मेज़र करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिलक्टेंस, और दूसरा नाम है रिलेक्टिविटी। गेटिंग? तो रिलक्टेंस का जो भी इक्वेशन था उसमें L इक्वल टू हम 1 रख देंगे और A इक्वल टू 1 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज द, ये जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए है कि हमें उसकी कुछ ज़रूरत है नहीं अभी। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रिलक्टेंस ऑफर बाय अ मैग्नेटिक सर्किट। सो मैग्नेटिक सर्किट का जो भी रिलक्टेंस आएगा वही है ऑफ, लेकिन क्या है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट लेंथ मतलब जो लंबाई है ये कितनी होगी जो 1 होगी जो है, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, और यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब आर छेदનું જે ક્ષેત્રફળ હોય એ પણ કેવું હોવું જોઈએ 1 મીટર સ્ક્વેર, બરાબર છે, જે મેં તમને સમજાયું એ જ છે। सो यहाँ पे एस हमने क्या लिखा था, रिलक्टेंस L बाई म्यू ए, म्यू क्या है वहाँ पे, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। गेटिंग? लेकिन हम सिंपल तरीके से लिखते हैं म्यू ए। सो यहाँ पे L एंड A दोनों हम क्या रख देंगे 1। सो L इक्वल टू 1 मीटर, ये म्यू, और A इक्वल टू क्या रख देंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो S इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई म्यू आ जाएगा। सो रिलेक्टिविटी मीन्स हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिलक्टेंस, रिलक्टेंस ही है, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक जो सर्किट है वो L एंड A क्या होगा 1 होगा, यूनिट होगा, राइट, बस वही है। तो ये आ गया इक्वेशन स्पेसिफिक रिलेक्टिविटी का, 1 बाई म्यू होगा, तो यहाँ पे लिखा है देखो सब कुछ 1 बाई म्यू, स्पेसिफिक रिलक्टेंस और रिलेक्टिविटी इक्वल टू 1 बाई म्यू। म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जो हमने देखा वो, बराबर, चुंबकीय पदार्थनी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और उसका जो यूनिट है वो क्या आता है हेनरी पर मीटर। ओके, तो ये बात हुई सारी मैग्नेटिक सर्किट मतलब चुंबकीय परिपथना आधार पर बधी व्याख्याओ, 10 જેટલી વ્યાખ્યાઓ જોઈ, તેમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે કરવાની છે, તમારે બધી સમજાવી છે,
कई करवानी छे ते पण मैं तमने बतावी हती, बराबर छे। कई करवानी छे मेन, एक ये मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी 2, और रिलक्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलक्टेंस एंड परमेबिलिटी। सो रिलक्टेंस याद रखोगे तो आपको ये जो दो है परमियंस एंड रिलक्टिविटी वो इजीली आपको याद रह जाएगी। तो ये दोनों कर देना, उसके चांसेस 50% है। गेटिंग? सो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, देन रिलक्टेंस एंड परमेबिलिटी, 4 ये मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ एंड एमएमएफ, ये 6 डेफिनेशन आपको परफेक्ट करनी है। और ये परमियंस एंड ये, तो ये 8 डेफिनेशन हुई। 8 में से 3 या 4 डेफिनेशन पक्का मिड एग्जाम में भी आएगी, एंड आप बोले तो जीटीयू एग्जाम में भी पक्का आएगी। ओके, सो ये अच्छी तरह से करनी है मैग्नेटिक सर्किट की डेफिनेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एक टॉपिक और बाकी है, वो हम देखेंगे, वो भी मोस्ट टाइम पे है, राइट।